Good morning, everybody, and good evening, and welcome to today's event. I'm so glad to see Ma Jyoti in such a light. It's really Jyoti today. Usually she's with dark. Yes. I'm glad you appreciate my light lamp. It's supposed to be natural light. Okay, it is. So if it looks like the sun shining down on me, it's shining down on me today. You're living up to your name today. Oh, lovely. I'm so glad I purchased this. I'll have to take this with me everywhere I go. There you go. Welcome, friends. Nirmal Swami ji, कैसे हैं आप? अच्छे, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, अच्छा। हाँ, सेकंड क्लास भी हो जाते हैं। अगर सेकंड क्लास कभी कभी नहीं होते हैं तो फर्स्ट क्लास का कोई मतलब नहीं होता है। So true, Swamiji, yes. ओशो कहते हैं ना कि अगर दो नहीं है तो एक का भी कोई मतलब नहीं होता है। क्या मतलब होता है एक का, अगर दो ही नहीं है तो आपका सुना मैंने, आपने जो कहा था, आप मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करके आपको भेजा था। नहीं, मैं नहीं सुना, मैं समय नहीं निकाल पाया। अच्छा, कोई नहीं, आज सुन लें जी। चलेंगे। There's a lot of background noise. Okay, friends, I know we're going to dive into a listening meditation today. And we'll talk about how to listen to the master. But before we do that, anybody wants to share anything, any feelings they want to complete, anything they want to say? I see Mahul Nasha wants to say something, I guess. You're on mute, Mahul Nasha. Lots of love and gratitude, Swamiji. Just bubbling. She just spreads energy. Swamiji, laughter meditation mini laughter meditation हो जाएगा अभी। Starts laughing. He's getting started now. Oh. What a beautiful sharing, Maulasa. It's so beautiful what you're experiencing, what you're sharing, how you're participating. It is truly blessing of the master. There is not anybody. Whenever you talk to the master, and you've seen a lot of people have said things to master with a lot of gratitude, but Osho says, मैं तुम्हें ही तुम्हारी ऊपर फेंक देता हूं. Every time. If you have the feeling of gratitude, if you express love, if you've gotten to deeper realization, Osho is going to put it back right onto you. It is not because of anybody else. Osho is available to all of us all the time. Previously, I was not available for him. Now I become available to the master. And therefore, I go deeper. Therefore, my heart opens. Therefore, I go into new space.
Osho will always and always put it back on you. Because the key is there. Nobody can do anything other than you. Whether we are in hell, we are responsible. If we are in heaven, we are responsible. ओशो कहते हैं मेरा आशीष तुम्हारे साथ है, लेकिन करना तुम्हें ही पड़ेगा. So if something beautiful is happening inside you, it is because of your quest. It is because of your openness. Yes, Master is available and he reaches you in many different ways. This satsang is one of the ways. He has many ways to reach, not just one way. So there isn't a whole lot of credit that can go to any particular person in this satsang. It is a creation of a master and it is available. And it is definitely available, but you who is drawing master's energy. So have gratitude for yourself. I don't know anything about that, Swamiji. I don't know. अभी बस हो रहा है. जो हो रहा है I वही just कर want रहा to give Ma Alhassa a big hug. I just don't know how I would contain all that beautiful too. energy. I'm going to make it work. I'm going to come see you. I want to also pull her cheeks. Like, come You're like this bundle of just energy. I know. Oh my gosh. You give so much love Yes. and we're receiving it. Yes. Oh my God. It's just so nice to, yeah, be part of that flow and that bundle. Yes. Hmm. किसी और को कुछ शेयर करनी है? स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और सभी मित्रों का. सभी फ्रेंड्स ऐड करते हैं अपना और वो सबके लिए हेल्पफुल होता है. और जो रिमेम्बरेंस की बात आपने कही, रिमेम्बरेंस के लिए मुझे बहुत बार ऐसे लगा है कि मैं अपने रूम में कहीं कहीं वॉल पे बी वॉचफुल ऐसे लिख के कहीं कहीं लगाऊं कि मुझे जहां मैं जाऊं मुझे फिर याद आ जाए. पर मैंने वो लगाया नहीं कभी. ऐसे थॉट आई थी पर लगाया नहीं. कुछ आप बताओ कि रिमेम्बरेंस के लिए हर पल मुझे याद रहे कि मुझे वॉचफुल रहना, विटनेसिंग हर पल रहे. यही कार्यक्रम है, यही हमारी जर्नी है कि हम वॉचफुल रह पाए, साक्षी रह पाए. लेकिन साक्षी रहने के लिए जो जरूरी है वो ये है कि मैं कुछ देख रहा हूं. एक दृश्य होनी चाहिए और आंख होनी चाहिए कि मैं कुछ देख रहा हूं. और हमारा जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि दृश्य तो चल रहे हैं, अंदर विचार चल रहे हैं, भाव चल रहे हैं, लेकिन मन जो अंदर की आंख है, इनर आई है, वो खुला नहीं है. और इसीलिए हमें दिखाई नहीं पड़ती है. और चूंकि हमें दिखाई नहीं पड़ती है तो ये जो रिमेम्बरेंस है ये भी नहीं हो पाता है. अब अगर आप अंधेरे में चलते जाएं, अंधेरे में रहते जाएं और दिन कभी ना हो तो आप एक दिन अपने आप को भी भूल जाएंगे, क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है अंधेरे में और अपने आप को देखने में. उस अंधेरे में डूब जाने में सब एक हो जाता है, तो हम अपने आप को देख नहीं पाते हैं और भूल जाएंगे. ओशो ने एक ध्यान भी बताया है, अंधेरा का ध्यान, तो उससे भी हम यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है
क्योंकि वो सिचुएशन क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मुझे अगर वो ध्यान की विधि मिल जाएगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप घर में कर सकते हैं। अंधेरे में रहते रहते हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो थोड़ी रोशनी जगाने की जरूरत है। जो आप पूछ रहे हैं कि मैं हर वक्त कैसे साक्षी भाव में रहूं, इसके लिए थोड़ी रोशनी जगाने की जरूरत है। अंदर की आंखें जगाए रखें। दृश्य जो हो रहा है बाहर में, उसके सहारे अंदर की जो आंख है उसे खोलते जाए। कल जो हमने ध्यान किया, उस ध्यान में बाहर का जो दृश्य है उसे हम सहारा बना लिया, और अंदर भाव में और मन में क्या विचार आ रहा है उसे हम देख कर जागते गए। तो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को ले लें। आप खाना पका रही हैं, तो खाना पकाने में अपने आप को थोड़ा ढीला छोड़ दें, और ऐसा ना समझें कि मुझे खाना बनाना है, 20 मिनट में खत्म करना है, कोई जॉब जैसा है, कोई टास्क जैसा, ऐसा ना हो। और अगर आपके पास वो सुविधा नहीं है तो कभी और सुविधा बनाएं जिसमें आपको समय की पाबंदी ना हो, और अपने आप को ढीला छोड़ दें और हाथ को, पैर को, आंखों को अपना काम करने दें, किचन में काम करने दें, खाना बनाने में। आप सिर्फ ढीला होके अंदर देखते जाएं, मन में क्या विचार आ रहा है और क्या भाव उठ रहे हैं। इसे 1 घंटा भर कर लें। इसमें आपको जागने की जो सुविधा है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जिंदगी में जाग रहे हैं तो दूसरे कर्मों में आप जाग पाएंगे। इसका दूसरा कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि हम और जागने की कोशिश करें। जब भी आपको मौका मिले, पूरे दिन का प्रण ना लें, सिर्फ एक घटना का प्रण लें। खाना बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, आप शायद अपनी माँ की सेवा करते हैं। ध्यान ये रखें कि आप बात ना करें। ये मेरी एक्सपीरियंस है। जब भी मैं कोई ध्यान करता हूं जिंदगी में, चाहे वो टेबल बनाने का ध्यान ही किया था मैंने, या तो मैं घास काट रहा हूं, कुछ भी करता हूं, शॉपिंग करने गई मोनिका तो मैं चल रहा हूं, कुछ भी मैं कर रहा हूं, इसमें सिर्फ इतना रखें कि बात ना हो। आप बातचीत करेंगे तो फिसल जाएंगे। तो कुछ ऐसा ले लें जहां पे आपको बात करने की जरूरत ना हो, और सारा कुछ चले, हाथ चले, आंखें देखें, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बात ना हो। और आंखें दो जो हैं बाहर देखें, और मन में चाहिए कह लें इनर आई जो है उसे जगाते जाए। माँ की सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तो पैर दबाते जाएं, आपके हाथ पैर दबाएं, आप वहां पे ढीला हो जाएं और अंदर देखें। आप देखेंगे थोड़ी देर में एक विचार आया कि अरे मुझे वो ऑर्डर करना था, क्या हुआ? फिर एक विचार आएगा, मैं माँ की सेवा कर रही हूँ, कितना अच्छा है। फिर विचार आएगा, मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, उसकी ऊर्जा कम हो रही है। जो भी विचार आता है, जो भाव आता है, उसमें आप हिल ना जाएं, आप सिर्फ उसे देखते रहें।
आप अगर 1 घंटा भी कोई भी काम में कर सकते हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में, तो ये जो जागने की जो ऊर्जा है, जागने की जो प्रक्रिया है, ये शुरू हो जाएगी और गहरे गहरे और गहरे गहरे होने लगेंगे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये होना ही है। आज ही मैं बात कर रहा था माँ ज्योति से, मैं ये कह रहा था कि ये प्रक्रिया कुछ ऐसा है, ऐसा समझ लें कि एक पाइप है और उस पाइप में उसके एक साइड में एग्जिस्टेंस है और दूसरे साइड में एग्जिस्टेंस से रिसीव होने के लिए है, दूसरे साइड में एग्जिस्टेंस को बैक एक्सप्रेस करने के लिए है। लेकिन ये जो पाइप है ये क्लॉग्ड है, इसमें काफी ग्रंथियां हैं और हम इसमें रुकाव डालते हैं कि एग्जिस्टेंस का जो ऊर्जा है वो बाहर प्रकाशित नहीं हो पाता हमारे द्वारा। तो जितना हम ध्यान करते हैं तो वो ग्रंथियां जो है वो टूट जाती हैं। जितना हम अवेयर होते हैं उतने ही थॉट्स एंड फीलिंग्स शांत हो जाते हैं। आपका हृदय बहुत तरल है, तो आप हृदय पे ध्यान करें। जो भी भाव आ रहा है, प्रेम का भाव भी आ रहा है, तो उसे रुके नहीं, उस जगह पे रुक न जाएं, उसे भी जाग के देखें। तो आपकी जो तीसरी छलांग है वो लग जाएगी। तो इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हर दिन 1 घंटा, आधा घंटा कोई भी काम करें, उसे ध्यान बनाएं, जाग के देखें। धीरे 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 ओशो की कृपा के साथ सब कुछ हो जाएगा आराम से। Thank you for sharing. Now, beloved friends, tonight we're going to listen to Osho. And let's mute everybody. Tonight we're going to listen to Osho in a particular way. This is called listening meditation. Normally, when we hear sound, somebody is talking and we are hearing, normally we are getting ready to reply. It is not passive listening. It is aggressive energy. We're not there to actually listen. We're simply there to reply. The way to listen to the master is to remain completely passive. You will relax your body, you will relax your breath and your mind. Allow master's energy to come onto you. You are not reaching to the master's energy. You're not reaching to his words. You're not thinking about it. You're not analyzing, and you're not anticipating what he's going to say next. You are there, and master's energy is showering on you. It is reaching you.
You're not reaching to the energy of the master. So remain receptive and let whatever is happening inside you happen. You simply remain loose. In that relaxation, master's energy will connect with your energy. And then your energy will be guided by the master's energy. Remember, it is not only words that have been spoken by the master. These words carry energy, and energy from the nothingness. Every word of master is coming from the same space he is in, nothingness. So if we allow that energy to connect within us, many things can happen. Listening to the master is not learning. It is not learning. It is not becoming more learned. It is an art of allowing things to happen inside us with the energy of the master. Without trying to understand intellectually, we will understand, and we will understand with a deeper being. It's going to penetrate deep into us. There is no need to remember anything the master is saying. As we get connected with the master, some of us will go into meditation, some of us will go into meditation, but may also sleep. In either case, do not fight. Whatever is happening, it is happening good. Many times you will feel like you are sleeping, but you are not. You are just in a state of transition. The transition from the physical body to the energy layer. You are there, but you're not there as in active sense. You're there in a passive way. Transition means the day has not completely ended, night has not yet started. It's a transition period. In India, we say Godhuli. That time is called Godhuli. It's a space of transition. Day has not ended, night has not started. Or the day has not started yet, but the night has not ended yet either. That early morning is a transition period. Listening to the master, if we can go into the state of transition, Tandra, not sleep, Tandra, transition state. Everything else will happen automatically. Nothing else is needed. Understanding will be deeper. Master will do the work that is possible within you. Even if you have not experienced what Master is going to talk tonight about matter, energy, and beyond energy, what is known as consciousness. Master's invitation will create this space in you. It will guide you to go and experience consciousness. It will work like a seed. The seed will take time, but it will sprout. Without you doing anything consciously, Master will find a way for you to experience consciousness. That might happen in this meditation. It may happen while you're walking in the park. It may happen while you are
watching a sunset. It doesn't matter how it happens. It will happen. You simply remain receptive, listening to the Master. Rest he will do. If you already have experienced consciousness, your understanding will deepen. And in fact, you will get deeper clarity of the experience that has happened in the past as well. You may have experienced it, but it was not clear. It was hazy, foggy. Listening to Master, it will become clear. And hence, next time, experiencing consciousness will be much, much, much easier. That is the purpose of listening to the Master, listening meditation. It is in Hindi, so simply relax your body, relax your breath, and relax your mind, and let yourself be guided by the Master. It is about an hour, so get ready. Have your body situated in the most comfortable way, so it does not demand attention. Relax and listen to the Master. उस आत्म तत्व के लिए, उस आत्म तत्व के स्वभाव के लिए कुछ सूचनाएं इस सूत्र में है। सबसे पहली, वह आत्म तत्व स्वयंभू है। इस जगत में अस्तित्व के अतिरिक्त और कुछ भी स्वयंभू नहीं है। स्वयंभू का अर्थ है सेल्फ ओरिजिनेटिंग। स्वयंभू का अर्थ है जो किसी और के द्वारा पैदा नहीं किया गया। स्वयंभू का अर्थ है जो किसी और के द्वारा सृजा नहीं गया, जो स्वयं ही हुआ है, जिसका होना स्वयं से ही निकला है, जिसका अस्तित्व किसी और के हाथ में नहीं, जिसका अस्तित्व स्वयं में ही निर्भर है। आत्म तत्व स्वयंभू है, ये पहली बात ख्याल में ले लेनी चाहिए। हम जिन चीजों को देखते हैं वे निर्मित हो सकती हैं। जो निर्मित हो सकता है, जो भी बनाया जा सकता है, वो आत्म तत्व नहीं होगा। एक मकान हम बनाते हैं, मकान स्वयंभू नहीं है, निर्मित है। एक यंत्र हम बनाते हैं, स्वयंभू नहीं है, निर्मित है, हमने बनाया। उस तत्व को खोजें जो हमने नहीं बनाया है, जो किसी ने भी नहीं बनाया है, जो अनबना है, अनक्रिएटेड है। उस तत्व का नाम ही आत्म तत्व है। यदि हम जगत के अस्तित्व में खोजते हुए वहां तक पहुंच जाएं, उस आधार को पकड़ लें जिसे किसी ने भी नहीं बनाया, जो है सदा से अनबना स्वयं ही, तो हम परमात्मा को पालेंगे। और अगर हम अपने भीतर प्रवेश करें और खोजते चले जाएं और वहां पहुंच जाएं जो अनबना है, स्वयं है, तो हम आत्मा को पालेंगे। आत्मा और परमात्मा दो बातें नहीं है।
एक ही वस्तु को दो दिशाओं से दिए गए नाम है। अगर आपने स्वयं में खोजा तो उस अनिर्मित असृष्ट स्वयंभू तत्व का नाम आत्मा है, और अगर आपने परम में खोजा और पाया तो उस तत्व का नाम परमात्मा तत्व है। आत्मा परमात्मा ही है, भीतर की तरफ से पकड़ी गई। परमात्मा आत्मा ही है, बाहर की तरफ से खोजा गया। स्वयं में यदि हम प्रवेश करें तो ये शरीर सृष्ट है। ये आपके माँ और पिता के सहयोग के बिना निर्मित नहीं होता, या कल टेस्ट ट्यूब में भी निर्मित हो सके तो भी सृष्ट ही होगा। इसलिए पश्चिम के वैज्ञानिक जीव शास्त्री आज नहीं कल अपने दावे को पूरा कर लेंगे, वो शरीर को निर्मित कर लेंगे। शरीर को निर्मित करने से उन्हें लगता है कि शायद वो आत्मवादियों को आखिरी पराजय दे देंगे। वो भूल में, क्योंकि आत्मवादी ने कभी आग्रह किया नहीं कि ये शरीर आत्मा है। आत्मवादी कहता है जो असृष्ट है वही आत्मा है। शरीर का सृजन करके वो इतना ही सिद्ध करेंगे कि शरीर आत्मा नहीं है। शरीर किसी दिन निर्मित हो जाएगा, मैं इसमें कोई कारण नहीं देखता हूं कि निर्मित क्यों नहीं हो जाएगा। बहुत से आत्मवादी भी डरे हुए होते हैं कि जिस दिन टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में शरीर निर्मित हो जाएगा, उस दिन आत्मा का क्या होगा। जिस दिन हम बच्चे को बिना माँ बाप की सहायता के केमिकल रासायनिक व्यवस्था से निर्मित कर लेंगे और वो ठीक मनुष्य जैसा खड़ा हो जाएगा, फिर उस दिन तो आत्मा नहीं है सिद्ध हो गया। उन आत्मवादियों को भी पता नहीं कि आत्मवाद ने कभी शरीर को आत्मा कहा नहीं। किसी दिन वैज्ञानिक अगर ये कर सके तो उससे सिर्फ उपनिषद का ये सूत्र ही सिद्ध होगा कि देखो ये शरीर भी आत्मा नहीं, इतना ही सिद्ध होगा और कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। अभी भी हम जानते हैं कि शरीर आत्मा नहीं है, अभी भी प्राकृतिक व्यवस्था से वो निर्मित होता है। कल कृत्रिम और वैज्ञानिक व्यवस्था से निर्मित हो सकेगा। आज भी जब माँ और पिता के रासायनिक तत्व मिलकर उस अणु का निर्माण करते हैं जो शरीर का पहला घटक है, तो आत्मा उसमें प्रवेश करती है। कल अगर विज्ञान की प्रयोगशाला में वो घटक, वो सेल निर्मित हो गया, वो जेनेटिक सिचुएशन, वो स्थिति पैदा हो गई जो माँ बाप के द्वारा पैदा होती रही है अब तक, तो वहां आत्मा प्रवेश कर जाएगी। लेकिन वो कोष्ठ, रासायनिक कोष्ठ जो शरीर का पहला घटक है, वो आत्मा नहीं है, वो निर्मित है, स्वयंभू नहीं है, किसी के द्वारा बना है, किसी के ऊपर उसका होना निर्भर है। इसलिए उसे आत्म तत्व कहने को आत्मज्ञानी तैयार नहीं होंगे। वो आत्म तत्व नहीं, और पीछे चलना पड़ेगा और गहरे उतरना पड़ेगा। तो मैं तो खुश होता हूं कि विज्ञान जितने जल्दी शरीर को निर्मित कर ले उतना अच्छा है। जितने जल्दी विज्ञान शरीर को निर्मित कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि तब हमें जो शरीर के साथ तादात्म्य है उसे तोड़ने में सहायता मिलेगी। तब हम ठीक ही जान पाएंगे कि शरीर एक यंत्र है। अब शरीर को स्वयं मानना ना समझिए, अभी भी ना समझी है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चलता कि शरीर यंत्र है, अभी भी यंत्र है, ये प्रकृति से उत्पन्न है। फिर हम प्रकृति के राज को समझ के स्वयं निर्माण कर लेंगे। तब शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने में सहयोग मिलेगा। स्वयं के भीतर प्रवेश करके उस जगह तक पहुंचना है जिसे निर्मित न किया जा सके, और जहां तक निर्मित किया जा सके वहां तक जानना कि आत्म तत्व नहीं। इसलिए विज्ञान जितने गहरे तक निर्माण कर ले उतना धर्म के पक्ष में, क्योंकि उतनी दूर तक तय हो गया कि आत्म तत्व नहीं है, आत्म तत्व और आगे है। आत्म तत्व सदा ही जहां तक निर्माण होगा उसके बियॉन्ड, उसके पार, उसके अतीत है।
तो विज्ञान की बड़ी कृपा है कि वो निर्माण करता चला जाए। जहां तक निर्माण हो जाएगा वहां तक सीमा निर्धारित हो जाएगी कि अब यहां तक तो आत्म तत्व नहीं, क्योंकि आत्म तत्व हम कहते ही स्वयंभू को हैं, जो अनिर्मित है, जो निर्मित नहीं हो सकता। इस स्वयंभू का अर्थ मूल में जो है निश्चित ही इस अस्तित्व के होने के लिए कहीं कोई आधारभूत अल्टीमेट आत्यंतिक तत्व तो चाहिए जो अनिर्मित हो। अगर हर चीज को निर्मित होने की जरूरत पड़े तो निर्माण असंभव हो जाएगा। कहें कि जगत को बनाने के लिए परमात्मा की जरूरत है, फिर कहें कि परमात्मा को बनाने के लिए फिर किसी और परमात्मा की जरूरत है, फिर इस जरूरत का कोई अंत नहीं होगा। कहीं वो जगह न आएगी जहां हम कह सकें कि बस ठीक है, यहाँ वो जगह आ गई जिसके निर्माण की किसी को जरूरत नहीं है। इसे ऐसा समझें तो और भी अच्छा और वैज्ञानिक होगा। आत्म तत्व स्वयंभू है ऐसा न कह के ज्यादा वैज्ञानिक होगा कहना कि हम कहें जो स्वयंभू है वो आत्म तत्व है। ऐसा न कह के कि परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, ये कहना ज्यादा वैज्ञानिक होगा कि जिसे किसी ने नहीं बनाया है, जो अनबना है, हम उसे ही परमात्मा कहते हैं। विज्ञान को भी अनुभव होता है, जगह जगह सीमा आ जाती है और लगता है कि इसके पार जो है वो निर्माण के बाहर है। जैसे अभी विज्ञान निरंतर सोचता था, खोजता था तत्वों को, एलिमेंट्स को, तो पुराने वैज्ञानिक कहते थे 5 तत्व हैं। पुराने धार्मिक नहीं, क्योंकि धार्मिक को तत्वों से प्रयोजन ही नहीं है। धार्मिक को तो सिर्फ एक से ही प्रयोजन है, स्वयंभू तत्व से। पुराने ढंग के 4 या 5,000 साल का पुराना जो वैज्ञानिक चिंतन था, वो कहता था पंच तत्व से निर्मित है सब। गलती ये हो गई कि उन दोनों में कोई विज्ञान की किताबें अलग नहीं होती थी, धर्म की किताबों में ही सब कुछ लिखा जाता था। धर्म की किताबें उस समय के ज्ञान का समुच्चय है, इसलिए ये बात भी कि पंच तत्वों से सब निर्मित है धर्म के किताबों में उपलब्ध है, लेकिन ये बात वैज्ञानिक है, ये बात धार्मिक नहीं है। धर्म को तो एक ही तत्व की खोज है, स्वयंभू तत्व की। फिर विज्ञान खोज करता चला गया, उसने पाया कि 5 तत्वों का सिद्धांत गलत है। जब विज्ञान ने ये पाया कि पंच तत्व का सिद्धांत गलत है, तो ना समझ धार्मिक बड़े परेशान हुए। उन्होंने समझा कि सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम तो मानते थे पंच तत्व है। विज्ञान धीरे धीरे नए तत्व खोजता चला गया और 108 तक संख्या पहुंच गई। लेकिन विज्ञान की नई खोज सिर्फ पुराने विज्ञान को गलत करती है। विज्ञान की कोई खोज धर्म को गलत नहीं कर सकती। उसका कारण ये कि दोनों के आयाम अलग हैं। कोई कितनी अच्छी कविता निर्मित कर ले, किसी गणित के सिद्धांत को गलत नहीं कर सकता। कविता और गणित की कोई संगति नहीं है। कोई कितना ही गणित का गहरा सिद्धांत खोज ले, उससे कोई कविता गलत नहीं होने वाली, क्योंकि काव्य का आयाम अलग है। वे कहीं कटते नहीं, वे कहीं एक दूसरे को आर पार नहीं करते, वे छूते भी नहीं। ये सब आयाम पैरेलल रेल की पटरियों की तरह दौड़ते हैं, समानांतर। कहीं अगर मिलते हुए मालूम पड़ते हैं तो वो आपकी भ्रांति है। जब आप वहां जाएंगे तो पाएंगे वो कहीं नहीं मिलते, वो समानांतर दौड़ते ही चले जाते हैं। रेल की पटरियों की तरह मिलने का भ्रम हो सकता है। विज्ञान जब भी किसी चीज को गलत करता है तो वो पुराने विज्ञान को गलत करता है। अगर विज्ञान ने कहा कि जमीन चपटी नहीं है, जमीन गोल है, तो ईसाईयत बहुत घबरा गई थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जमीन चपटी है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है जमीन चपटी है, ये बाइबल के जमाने के वैज्ञानिकों की घोषणा है, ये कोई धार्मिक घोषणा नहीं है।
इसलिए अगर विज्ञान ने खोज कर ली कि जमीन गोल है तो ठीक है, पुरानी बात गलत हो गई। लेकिन पुराना विज्ञान गलत हुआ। विज्ञान कभी भी धर्म को गलत नहीं कर सकता और न धर्म कभी विज्ञान को गलत कर सकता है। उनका कोई संबंध नहीं, उनका कोई लेन देन नहीं, उनके बीच कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है। वो आयाम ही भिन्न है, वो दिशाएं बिल्कुल अलग है। ये 5 तत्वों की खोज 108 तत्वों तक चली गई थी और विज्ञान ने पाया कि पुराने 5 तत्व गलत ही थे। असल में जिनको पहले तत्व कहा था वो तत्व नहीं थे, कंपाउंड्स थे, एलिमेंट्स नहीं थे। जैसे मिट्टी, अब मिट्टी में 1000 तत्व, कोई मिट्टी में एक तत्व नहीं है। जैसे पानी, तो पानी में अब विज्ञान कहता है 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक तत्व नहीं है पानी। पानी 2 तत्वों का जोड़ है। जोड़ को विज्ञान तत्व नहीं कहता है, संयोग कहता है, जोड़ कहता है। तो पानी तो कोई तत्व नहीं रहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व हो गए। इस तरह 108 तत्व विज्ञान ने खोज लिए। लेकिन फिर विज्ञान को भी धीरे धीरे जैसे जैसे गहरी खोज हुई, एक बात ख्याल में आने लगी कि ये सब तत्वों के, 108 तत्वों के घटक समान है। हाइड्रोजन हो कि ऑक्सीजन हो, उन दोनों का निर्माण विद्युत से ही होता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तत्व नहीं रह गए। तत्व तो विद्युत हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। विद्युत के ही कुछ कणों का जो हाइड्रोजन बनता है और कुछ कणों का जो ऑक्सीजन बनता है। और ये 108 तत्व विद्युत के ही कणों के जोड़ है। अगर 3 कण होते हैं तो एक तत्व बन जाता है, 2 कण होते हैं तो एक तत्व बन जाता है, 4 होते हैं तो एक तत्व बन जाता है। लेकिन वो 3 हो कि 4 हो कि 2 हो, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिजली के कण हैं। तो फिर विज्ञान को नई अनुभूति हुई और वो ये हुई कि तत्व तो सिर्फ विद्युत है एक, बाकी ये 108 तत्व भी गहरे में कंपाउंड है, ये भी जोड़ है, ये भी तत्व नहीं है, ये भी मूल नहीं है। आज जो विज्ञान की स्थिति है उसमें वो ये मानने को तैयार हो गया है कि विद्युत अनिर्मित है, स्वयंभू है और विद्युत एकमात्र तत्व है जिससे सारा फैलाव है। विद्युत क्योंकि कंपाउंड नहीं है, मिला हुआ नहीं है 2 तत्वों से, इसलिए अनिर्मित है। तत्व कहता विज्ञान उसे है जो स्वयंभू है। तो अब विज्ञान कहता है कि विद्युत स्वयंभू तत्व है, वो नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो चीज जोड़ के बन सकती वो बनाई जा सकती है। 2 चीजों को आप जोड़ देंगे, तीसरी चीज बन जाएगी, 3 चीजों को जोड़ देंगे, चौथी चीज बन जाएगी। लेकिन मौलिक तत्व जो ओरिजिनल एलिमेंट है, जो बिना जोड़ का है, उसको आप कैसे बनाएंगे? उसको बना भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। अगर हमें पानी को मिटाना है, हम मिटा सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देंगे, पानी मिट जाएगा, क्योंकि वो जोड़ है। अगर हमें हाइड्रोजन को मिटाना है तो हम उसे भी मिटा देंगे। अगर हमने उसके विद्युत के कणों को अलग कर दिया, जिसको हम एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, वो सिर्फ विद्युत के कणों को अलग करना है, तो हाइड्रोजन मिट जाएगा, हाइड्रोजन नहीं बचेगा, सिर्फ विद्युत ऊर्जा रह जाएगी, सिर्फ शक्ति रह जाएगी। लेकिन उस शक्ति को हम नहीं मिटा सकते, क्योंकि उसमें 2 का जोड़ नहीं है जिनको हम अलग कर सकें। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, या तो चीजों को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं, सृजन नहीं कर सकते। तो तत्व वो है जो असृजित है, जिसका हम सृजन नहीं कर सकते। विज्ञान अभी कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ऊर्जा स्वयंभू तत्व है, लेकिन धर्म कहता है आत्म तत्व स्वयंभू है। कोई हैरानी ना होगी कि आज नहीं कल विज्ञान की और खोज विद्युत को भी तोड़ दे और हम पाएं कि विद्युत भी स्वयंभू नहीं। क्योंकि पहले हम पाते थे कि पानी तत्व है, फिर हमने तोड़ा तो पाया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व, पानी तत्व नहीं है। फिर हमने हाइड्रोजन को भी तोड़ लिया तो पाया कि हाइड्रोजन भी तत्व नहीं है, विद्युत तत्व है। अभी विद्युत या तो आत्म तत्व और विद्युत एक ही चीज सिद्ध हो, और या फिर विद्युत भी टूट जाए,
और हमें पता चले कि वो भी तत्व नहीं। जहां तक मेरी समझ है, विद्युत भी टूट सकेगी, और जिस दिन विद्युत टूटेगी उस दिन हम पाएंगे कि चेतना, कॉन्शियसनेस, विद्युत के टूटते ही। अब ये बहुत मजे की बात है, पत्थर को कोई भी नहीं कह पाएगा कि एनर्जी है, शक्ति है। पत्थर पदार्थ, पुराना भेद हमारा है मैटर और एनर्जी का, पदार्थ और शक्ति का। पदार्थ पत्थर है, पदार्थ। लेकिन जब पत्थर को तोड़ा गया और एनालिसिस और विश्लेषण, और जब अंतिम जाके अणु का विस्फोट हुआ तो पदार्थ खो गया, बची ऊर्जा। और विज्ञान को एक पुराना जो निरंतर का द्वैत था वो समाप्त कर देना पड़ा। मैटर और एनर्जी का जो पुराना द्वैत था कि एक है पदार्थ और एक है शक्ति, वो समाप्त कर देना पड़ा। पदार्थ के टूटने पर पता चला कि पदार्थ नहीं है, सिर्फ शक्ति ही है। मैटर इज एनर्जी। कहना पड़ा कि पदार्थ ही ऊर्जा है। अब पदार्थ जैसी कोई चीज नहीं है। आज विज्ञान की जो नवीनतम शोध है उसमें पदार्थ जैसी कोई भी चीज नहीं। पदार्थवादी को बहुत सचेत हो जाना चाहिए। अब पदार्थ जैसी कोई चीज ही नहीं, सिर्फ ऊर्जा है। जब तक पदार्थ के नीचे हम नहीं उतरे थे तब तक दो चीजें थी, पदार्थ था और ऊर्जा थी। निश्चित ही एक पत्थर को उठाएं हाथ में और फिर बिजली के तार को छुएं तो फर्क पता चलेगा। पत्थर को हाथ में उठाएं और बिजली के तार को छुएं तो पत्थर पदार्थ मालूम होता है, बिजली के तार से जो बहती है वो ऊर्जा है। दोनों में बड़ा भेद। लेकिन अब विज्ञान कहता है कि पदार्थ, पत्थर को भी तोड़ दें हम तो आखिर में वही ऊर्जा मिल जाती है जो बिजली के तार से बहती है। उसी को तोड़ के तो हिरोशिमा पे हमने 1 लाख आदमी मारे। वो बिजली का धक्का है। पदार्थ के विखंडन से, एक छोटे से अणु के विस्फोट से इतनी ऊर्जा पैदा हुई कि हिरोशिमा में 1 लाख और नागासाकी में 1,20,000 आदमी मरे। बड़ी से बड़ी बिजली को भी छू के इतने आदमी नहीं मर सकते। एक छोटे से कण से इतनी बिजली पैदा हुई, लेकिन वो कण खो गया, बिजली हो गई। तो अब विज्ञान कहता है कि हमारा पुराना जो द्वैत था पदार्थ और ऊर्जा का, वो नष्ट हो गया। अब तो ऊर्जा है। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक और अभी भेद रह गया है, ऊर्जा और चेतना का, एनर्जी और कॉन्शियसनेस का। बिजली तो हम छूते हैं तो पता लगता है शक्ति है, लेकिन जब एक आदमी से हम बात करते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं लगता कि शक्ति है, चेतना भी मालूम पड़ती है। बिजली दौड़ गई है। एक टेप रिकॉर्डर बोलेगा तो टेप रिकॉर्डर वही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन जब टेप रिकॉर्डर बोलेगा तो सिर्फ ऊर्जा है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ ऊर्जा नहीं है, चेतना भी है। इसलिए टेप रिकॉर्डर अदल बदल नहीं कर सकेगा, जो मैंने बोला वही बोलेगा। और मैं चाहूं भी तो कल यही नहीं बोल सकूंगा जो आज बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई यंत्र नहीं। मुझे खुद भी पता नहीं है कि इस वचन के बाद कौन सा वचन निकलेगा। जब आप सुनेंगे तभी मैं भी सुनूंगा। चेतना और ऊर्जा का फासला अभी कायम है। कहना चाहिए कि पुराना जो था जगत वो द्वैत नहीं था, त्रैत था। पदार्थ, ऊर्जा, चेतना, मैटर, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, वो त्रैत था। उसमें से एक तो गिर गया, पदार्थ गिर गया। अब द्वैत रह गया, ऊर्जा और चेतना। पदार्थ को गहरे में खोजने से पदार्थ नष्ट हो गया और हमने पाया कि ऊर्जा है। और मैं आपसे कहता हूं कि ऊर्जा को गहरे में खोजने से ऊर्जा भी गिर जाएगी और हम पाएंगे कि चेतना, उस चेतना का नाम आत्म तत्व है। जहां सब गिर जाएगा, न पदार्थ होगा, न ऊर्जा होगी, सिर्फ कॉन्शियसनेस। इस
इसलिए हमने उस परम तत्व को सच्चिदानंद कहा। 3 शब्दों का उपयोग किया है उस आत्म तत्व के लिए। सत्य, सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्टेंट, जो है, और जो कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, जो सदा है। सत्य का अर्थ है जो सदा है, जो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं होता कि आप कह सकें नहीं है ही। सब कुछ बदलता चला जाए, वो है। चित्त का अर्थ होता है चैतन्य, कॉन्शियसनेस। वो अकेला है ही ऐसा ही नहीं, उसे पता भी है कि मैं हूं। एक चीज हो सकती, एक पत्थर पड़ा है, वो है, तब वो सिर्फ एग्जिस्टेंट है। लेकिन उस पत्थर को ये भी पता है कि मैं हूं, तब वो चित्त भी, तब वो कॉन्शियसनेस भी। और तीसरा शब्द हम कहते हैं आनंद। इतना ही नहीं कि वो आत्म तत्व है, इतना ही नहीं कि वो चैतन्य है, इतना ही नहीं कि वो है और उसे पता है कि मैं हूं, इतना भी कि जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं हूं, उसे ये भी पता चलता है कि मैं आनंद हूं। इस आत्म तत्व को स्वयंभू कहा है इस सूत्र में। उसे किसी ने बनाया नहीं, उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। इसीलिए ध्यान रहे, स्वयंभू है, इसीलिए अमृत है। जो चीज बनेगी वो मिटेगी, जो चीज निर्मित होगी वो नष्ट होगी। कोई निर्माण शाश्वत नहीं हो सकता, कोई निर्माण नित्य नहीं हो सकता। सब निर्मितियां समय में बनती हैं और समय में मिट जाती हैं। असल में जिस चीज का भी जन्म होगा वो मरेगी। कितना ही मजबूत बनाए, थोड़ी देर लगेगी मिटने में, लेकिन मिटेगी। महल चाहे कागज के पत्तों के बनाए जाएं, गिर जाते हैं, और चाहे सख्त पत्थर के बनाए जाएं, गिर जाते हैं, और चाहे फौलाद के बनाए जाएं तो गिर जाते हैं। हाँ, देर लगती है, समय लगता है। ताश के पत्तों के घर को हवा का एक झोंका गिरा देता है, पत्थर की दीवारों के महलों को हवा के लाखों झोंके गिरा पाते, लेकिन गिरा देते। मात्रा का फर्क पड़ता है। ताश के पत्तों के घर में और पत्थर के महलों में जो फर्क है वो मात्रा का फर्क है कि कितने हवा के झोंके गिरा पाएंगे। बुनियादी अंतर नहीं है, क्योंकि ताश का घर भी बनाया गया है इसलिए गिरेगा, और महल भी बनाए गए हैं इसलिए गिरेंगे। जहां एक छोर पर निर्माण होगा, वहां दूसरे छोर पर विध्वंस होगा। स्वयंभू है इसलिए आत्म तत्व अमृत है, क्योंकि एक छोर पर कभी बना नहीं, इसलिए दूसरे छोर पर कभी मिटेगा नहीं। तो स्वयंभू में एक बात तो है कि अनिर्मित है, और दूसरी बात है कि अमृत है, इमॉर्टल है, नष्ट नहीं हो सकता। ये भी आपसे कह दूं, इससे विज्ञान भी राजी होता है कि जो तत्व दो से मिलकर बना है वो मिटेगा, जो तत्व एक से बना है वो नहीं मिट सकता, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसके बनने का कोई उपाय नहीं। बनाना हो तो चीजें मिलानी पड़ती हैं, मिटाना हो तो अलग कर देनी पड़ती है। बनाना जोड़ना है, मिटाना बिखराना है। लेकिन जो तत्व इकहरा है, जिसमें कोई दूसरा तत्व नहीं है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। उसको मिटाएंगे कैसे? उसे तोड़ा नहीं जा सकता। वो दो होता तो टूट जाता, वो एक ही, वो सदा रहेगा। तत्व स्वयंभू होगा और तत्व अमृत होगा। उस तत्व को उपनिषद आत्म तत्व कहते हैं। फिर कुछ और बातें भी गिनाई हैं जो इसके बाद अनिवार्य है। कहा है कि वो स्वयंभू आत्म तत्व सर्वज्ञ है।
सर्वज्ञ का क्या अर्थ होगा? सर्वज्ञ के दो अर्थ हो सकते हैं, और आमतौर से जो गलत अर्थ होगा दो में, वही प्रचलित है। अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज प्रचलित होती है अक्सर गलत होती है। ज्ञान इतना गूढ़ है कि बहुत प्रचलित नहीं होता। अज्ञान सबकी समझ में आ जाता है, सहज प्रचलित होता है। सर्वज्ञ का एक अर्थ तो होता है ऑल नोइंग, सब कुछ जानता है। यही अर्थ प्रचलित है। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए जैनों ने महावीर को सर्वज्ञ कहा था इसीलिए कि जब आत्म तत्व जान लिया गया तो आदमी सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि आत्म तत्व का लक्षण है सर्वज्ञ होना। सब जान लिया। महावीर ने खुद कहा है, जिसने एक को जाना उसने सब जान लिया। तो फिर ठीक है, महावीर ने सब जान लिया। तो फिर पीछे अनुयायी जो है वो सोचता है कि महावीर को ये भी पता होगा कि साइकिल का पंचर कैसे जोड़ा जाता है, लेकिन महावीर को साइकिल का भी कोई पता नहीं। तो फिर महावीर को पता होना चाहिए कि हवाई जहाज कैसे बनाया जाता है। सर्वज्ञ का अगर ये अर्थ लिया तो बड़ी भ्रांति होती है और इससे बड़ी तकलीफ होगी। महावीर को जिस दिन इस तरह सर्वज्ञ माना जैनों ने, उसी दिन तकलीफ में पड़ गए। फिर उनकी इस बात की बुद्ध ने बहुत मजाक उड़ाई। बुद्ध ने बहुत जगह बहुत मजाक उड़ाई, और महावीर के सर्वज्ञता की अनुयायियों की मजाक है, क्योंकि अनुयायियों ने जो दावा करना शुरू किया वो ये कि महावीर सब जानते। तो बुद्ध ने बहुत जगह मजाक में कहा है कि मैंने सुना है कि किसी के संबंध में कुछ लोग दावा करते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन उन्हें मैंने ऐसे घर के सामने भीख मांगते देखा है जिस घर में कोई था ही नहीं। पीछे पता चला कि घर खाली। उन्हें मैंने सुबह के धुंधले अंधेरे में चलते हुए देखा है और सुना है कि कुत्ते की पूंछ पर पैर पड़ गया, तब उन्हें पता चला कि कुत्ता रास्ते में सोया हुआ है। ये बुद्ध ने मजाक उड़ाई सर्वज्ञता की, उस अर्थ की। सर्वज्ञता का वो अर्थ नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि जिन्हें लोग सर्वज्ञ कहते हैं उनके संबंध में मैंने सुना है कि वो भी गांव के बाहर आकर लोगों से पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है, महावीर को भी पूछना पड़ता है कि रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन ये मजाक महावीर की नहीं है। महावीर का ऐसा कोई दावा नहीं। दावेदार अनुयायी जो कहते हैं कि उनके महावीर सब जानते हैं, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है ये भी जानते नहीं। सर्वज्ञ का दूसरा ही अर्थ बहुत निगेटिव, ये बहुत पॉजिटिव अर्थ गलत है, ये बहुत विधायक, सब जानते हैं। नहीं, सर्वज्ञ का निषेधात्मक अर्थ है कि जानने को कुछ शेष नहीं रहता। सर्वज्ञ का अर्थ है कि जानने को कुछ शेष नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं बचता जो जानने योग्य है। रास्ता कहाँ जाता है ये भी कोई जानने योग्य बात है। घर में कोई है या नहीं ये भी कोई जानने योग्य बात है। न जाना तो हर्ज क्या है। रास्ते पर कुत्ता सोया है या नहीं सोया है ये भी कोई जानने योग्य बात है। न जाना तो हर्ज क्या है। सर्वज्ञ का मेरी दृष्टि में जो अर्थ है वो ये कि ऐसा कुछ भी नहीं बचता आत्म तत्व में जो जानने योग्य है और न जान लिया गया हो।
जो भी जानने योग्य है वो जान लिया गया आत्मा को जानते ही। ऑल दैट इज वर्थ नोइंग। काम चलाऊ जगत में बहुत सी बातें मालूम पड़ती हैं कि जानने योग्य हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सर्वज्ञ का मेरे लिए जो अर्थ है वो है ऐसा कुछ भी नहीं बचा जो जानने योग्य, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसके कारण जीवन के आनंद में रत्ती भर भी फर्क पड़ता हो। ऐसा कुछ भी जानने को नहीं बचा जिससे सच्चिदानंद होने में कोई भी भेद पड़ता है। रास्ता ये बाएं जाता है तो पहुंचता होगा कहीं, ये रास्ता दाएं जाता है तो पहुंचता होगा कहीं, लेकिन इससे सच्चिदानंद स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और महावीर भटक भी जाएं और गलत गांव पहुंच जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ठीक मंजिल पर पहुंचा हुआ आदमी कहीं भी भटके क्या फर्क पड़ता है। और हम जो कि ठीक मंजिल पर नहीं पहुंचे बिल्कुल ठीक गांव भी पहुंच जाएं तो क्या होने को। और हमें सब रास्ते बिल्कुल ठीक ठीक पता है, हम बिल्कुल पीडब्ल्यूडी का नक्शा है, तो भी क्या फर्क पड़ रहा है। तो सर्वज्ञ का मैं अर्थ करता हूं और मैं जानता हूं कि सर्वज्ञ का ऐसा अर्थ न किया जाए तो मखौल हो जाती, मजाक हो जाती। तो महावीर को बहुत मखौल व्यर्थ झेलनी पड़ी उनके पीछे चलने वाले लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो दावे किए वो बेमानी थे। तो इसलिए अब बड़ी तकलीफ है उनको। अभी जैसे कि पहली दफा अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरे तो जैन साधुओं को बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि वो कहते हैं कि उनके शास्त्र में लिखा है कि चांद कैसा है, वैसा चांद नहीं पाया गया। और शास्त्र को वो मानते हैं, उन्होंने कहा है जो सर्वज्ञ थे, तो उनकी बात तो गलत हो ही नहीं सकती। तो जैन साधुओं ने यहां तक कहा कि ये भ्रांति में है लोग कि चांद पे उतर गए। चांद पे नहीं उतरे, बल्कि चांद के इस तरफ देवताओं के जो वाहन ठहरे रहते हैं, बैलगाड़ियां, रथ, ये उन पे उतर गए और वहीं से लौट आए, ये चांद पे नहीं उतरे। एक जैन मुनि ने तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ना समझ मिल गए जिन्होंने लाखों रुपया भी दिया ये सिद्ध करने के लिए कि वो सिद्ध करेंगे एक प्रयोगशाला में कि ये किसी देवता के वाहन पे उतर के लौट आए, वापस चांद तक नहीं पहुंचे। चांद पे पहुंचेंगे तो चांद वैसा ही होगा जैसा हमारे शास्त्र में लिखा, क्योंकि वो शास्त्र सर्वज्ञ का कहा हुआ है। अगर ऐसा दावा किया तो वो शास्त्र दो कौड़ी का हो जाएगा। तुम्हारी नासमझी की वजह से वो शास्त्र दो कौड़ी का हो जाएगा। अगर तुम्हारे शास्त्र में कहीं भी कहा हुआ है कि चांद कैसा है और गलत होता है, तो वो शास्त्र का वक्तव्य उस जमाने के वैज्ञानिक का वक्तव्य है, आत्मज्ञानी का नहीं। और आत्मज्ञानी को क्या मतलब है कि वो वक्तव्य दे कि चांद पे किस तरह के पत्थर हैं और नहीं। अगर देता भी हो ऐसा वक्तव्य तो वो आत्मज्ञानी की हैसियत से दिया गया नहीं। परिस्थिति बड़ी मुश्किल होती है। अब आइंस्टीन जैसा विचारक है, गणितज्ञ है, पर गणितज्ञ होने पर ही पूरा समाप्त थोड़ी है, उसकी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। जब वो ताश खेलता है तब गणितज्ञ नहीं है, और जब किसी स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है तब गणित का क्या लेना देना है। तब अगर वो स्त्री से कह दे कि तुझसे सुंदर कोई भी नहीं, तो ये कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि इसको कोई कल दावा करे कि आइंस्टीन ने कहा कि इतना बड़ा गणितज्ञ, तो उसने सारी दुनिया की स्त्रियों के सौंदर्य को नाप के जोक के कहा होगा कि ये स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर। ये तो कोई भी कहता रहा है, हर स्त्री को कहने वाले मिल जाते हैं। इसके लिए किसी के गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं। पर ये गणितज्ञ की हैसियत से नहीं कहा गया है, ये हैसियत एक प्रेमी की है, और प्रेम जिससे हो जाता उससे सुंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि प्रेम उससे हो जाता जो सबसे ज्यादा सुंदर है, प्रेम जिससे हो जाता वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है।
वो प्रेम के द्वारा पैदा हुआ इल्यूजन है। तो अगर किसी आत्मज्ञानी ने कोई वैज्ञानिक वक्तव्य भी दिए हो तो वो वक्तव्य वैज्ञानिक है, उनका कोई आत्मज्ञान से लेना देना नहीं। आत्मज्ञानी सर्वज्ञ है इस अर्थ में कि अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसे जानने से उसके आनंद में कोई बढ़ती होगी। उसका आनंद पूरा है। ऐसा कोई भी अज्ञान नहीं बचा है जो उसके आनंद में बाधा डालता हो। उसका सब अज्ञान नष्ट हो गया, उसका क्रोध, उसका मोह, उसका लोभ नष्ट हो गया। वो परम आनंदित है। सर्वज्ञ का अर्थ है परम आनंद में प्रतिष्ठित। ऐसे ज्ञान को जान लिया जिससे आनंद प्रतिष्ठित हो जाता है और दुख की संभावना विदा हो जाती। तो आत्म तत्व सर्वज्ञ है इस अर्थ में, त्रिकालज्ञ के अर्थ में नहीं कि तीनों काल का उसे पता है कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा, कि इलेक्शन में कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। ऐसा उसे कुछ भी पता नहीं है। ऐसा पता होने का कोई कारण भी नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। ये सारा समय के भीतर में होने वाला खेल उसके लिए पानी पर खींची गई रेखाओं जैसा हो गया। वो इसका कोई हिसाब नहीं रखता। ये उसके लिए स्वप्नवत हो गया कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ये बच्चों की दुनिया की बात हो गई, वो प्रौढ़ हो गया। इस सब से कोई लेना देना नहीं। सर्वज्ञ उस तत्व को जानकर सर्वज्ञता आ जाती, अर्थात अज्ञान गिर जाता है। अर्थात लोभ, मोह, क्रोध जो अज्ञान से पैदा होते हैं वो गिर जाते। अर्थात आनंद जो ज्ञान से जन्मता है वो उपलब्ध हो जाता है। वो दिया जल जाता है जो ज्ञान का है और जिसकी रोशनी में परम आनंद की प्रतिष्ठा है, शाश्वत नित्य आनंद की प्रतिष्ठा है। ऐसा जो आत्म तत्व है उसका तीसरा लक्षण कहा है शुद्ध। सदा शुद्ध, सदा पवित्र, सदा निर्दोष। जब हम अशुद्ध हुए मालूम पड़ते हैं तब भी वो अशुद्ध नहीं हुआ है। हमारी सारी अशुद्धि हमारी भ्रांति। जैसा कल मैं रात कह रहा था कि सूर्य का प्रतिबिंब गंदे डबरे में भी उतना ही शुद्ध है। ऐसा है वो आत्म तत्व रावण के भीतर भी उतना ही शुद्ध है जितना राम के भीतर। जरा भी फर्क नहीं है उसकी शुद्धि में। असल में शुद्ध होना उसका कोई संयोगिक लक्षण नहीं है, उसका स्वभाव लक्षण। इसलिए संयोगिक लक्षण और स्वभाव लक्षण के भेद को समझ लें तो ये बात ख्याल में आ जाएगी। दो तरह के लक्षण होते हैं, एक्सीडेंटल, संयोगिक। संयोगिक लक्षण वो है जो फॉरेन है, विजातीय, आपसे जुड़ता है, आपके भीतर से नहीं आता। जैसे एक आदमी बेईमान है, बेईमानी एक्सीडेंटल, संयोगिक, स्वरूपगत नहीं है, सीखी गई, अर्जित है। इसीलिए तो कोई आदमी 24 घंटे बेईमान नहीं रह सकता। बेईमान से बेईमान भी 24 घंटे बेईमान नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी अर्जित है वो बोझ रूप है, उसे उतार के रखना पड़ता है, विश्राम करना पड़ता है, वो स्वभाव नहीं। इसलिए बेईमान से बेईमान आदमी किन्हीं के साथ ईमानदार होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बेईमान आदमी आपस में जितने ईमानदार होते हैं उतने ईमानदार आदमी भी आपस में ईमानदार नहीं होते। उसका कारण कि जिसको हम ईमानदारी कहते हैं वो भी अर्जित है, उससे भी छुटकारा लेना पड़ता है।
जो भी चीज अर्जित है, एक्सीडेंटल है, उसके साथ आप सदा नहीं हो सकते। आपको बीच बीच में छुट्टी देनी पड़ेगी। आपको थोड़ा छुट्टी लेनी पड़ेगी, नहीं तो बोझ हो जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। इसलिए गंभीर आदमी को मनोरंजन करना पड़ता है, क्योंकि गंभीरता बोझ हो जाती। महावीर को या बुद्ध को मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई गंभीरता का बोझ ही नहीं। ये आप ध्यान में लें। हम आमतौर से समझते हैं कि वो इतने गंभीर हैं इसलिए सिनेमा गृह में नहीं बैठते, नाटक देखने नहीं जाते। नहीं, अगर इतने गंभीर है तो उनको नाटक देखने जाना ही पड़ेगा। नहीं, वो गंभीर है ही नहीं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो गैर गंभीर। गंभीरता और गैर गंभीरता बेमानी है। वो तो वही है जो निजता है, जो स्वभाव। वो कुछ अर्जित नहीं करते ऊपर से, इसलिए किसी चीज से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। अगर किसी आदमी ने संतत्व को भी आदत बना ली तो उसको हॉलीडे पे जाना पड़ेगा। उसको 2, 4, 8 दिन में, महीने, 15 दिन में संतत्व से छुट्टी लेनी पड़ेगी। और जब तक घंटे 2 घंटे वो गैर संत की दुनिया में प्रवेश न कर जाए, तब तक वापस फिर संत होना नहीं हो पाएगा, मुश्किल पड़ेगा। एक्सीडेंटल क्वालिटीज, संयोगिक गुण हैं जो हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं, बाहर से हम पे आते हैं, भीतर से नहीं आते। सब कुछ हमारा सीखा हुआ है। जैसे समझे भाषा, भाषा संयोगिक है, सीखी हुई। तो कोई हिंदी सीख सकता है, कोई मराठी सीख सकता है, कोई अंग्रेजी, कोई जर्मन, 1000 भाषाएं और 1000 और हो सकती हैं। कोई अड़चन नहीं, कोई अड़चन नहीं है। एक एक आदमी एक एक भाषा बोल सकता है, कोई अड़चन नहीं, कोई अंत नहीं है। इतनी भाषाएं हम बना सकते हैं, संयोगिक। लेकिन मौन संयोगिक नहीं। इसलिए 2 आदमी बोलते हो तो बोलने में भेद हो सकता है, लेकिन 2 आदमी पूरी तरह मौन हो जाएं तो उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। भाषा में विवाद हो सकता है, मौन में कोई विवाद नहीं हो सकता। और जब 2 आदमी बिल्कुल मौन होते हैं तो उनकी भीतरी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं रह जाता। 2 साइलेंस में क्या फर्क होगा, 2 मौन में क्या भेद होगा। लेकिन मौन अगर ऊपर से थोपा हुआ हो तो भेद होगा, क्योंकि भीतर भाषा चलती रहेगी। सिर्फ चुप हैं 2 आदमी तो भेद होगा। मैं चुप बैठा हूं, आप मेरे बगल में चुप बैठे हैं, तो मैं अपना सोचता रहूंगा, आप अपना सोचते रहेंगे, सोचना जारी रहेगा, ओंठ बंद रहेंगे, ओंठ तो लगेंगे बिल्कुल एक से, भीतर सब भेद चलता रहेगा। हम भीतर हजारों मील के फासले पर होंगे, पता नहीं आप कहां हो और मैं कहां हूं। लेकिन अगर सच में मौन आ गया, ऊपर से अर्जित नहीं, भीतर से खिला हुआ, ऊपर से थोपा गया नहीं, भीतर से आविर्भूत, हम बिल्कुल ही चुप हो गए, भीतर भी शब्द खो गए, भाषा खो गई, तो मुझ में और आप में कौन सा भेद होगा, कौन सा फासला होगा। हम एक ही जगह हो जाए, हम एक जैसे हो जाए। हमारी 2 ज्योतियां धीरे धीरे मौन होते होते एक ज्योति बन जाए, 2 भी नहीं रह जाए, क्योंकि 2 को फासला करने वाला बीच का कोई बाउंड्री लाइन नहीं बचेगी। भेद से बनती है सीमा, अभेद में गिर जाती। तो मौन तो, पूर्ण मौन, अंतर मौन तो स्वभाव है, भाषा संयोगिक है। जो संयोगिक है वो सदा रहने वाला नहीं। इसलिए मजे की बात है, आप 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटे क्षमा में हो सकते। सोचिए इसे, 24 घंटे क्रोध में नहीं हो सकते। क्रोध में चढ़ेंगे उतरेंगे, 24 घंटे क्रोध में नहीं हो सकते। लेकिन क्षमा में 24 घंटे होने में कोई बाधा नहीं, 24 घंटे हो सकते। घृणा में अगर जीना हो तो 24 घंटे नहीं जी सकते, नरक हो जाएगी खुद के लिए। लेकिन अगर प्रेम में जीना हो तो 24 घंटे जी सकते। लेकिन जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें भी हम 24 घंटे नहीं जी सकते।
उसमें भी हम 24 घंटे नहीं जी सकते। जिसे हम प्रेम कहते हैं वो भी पीरियोडिकल है, वो भी अवधि का है। 24 घंटे में 10-5 मिनट प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। और अगर कोई ज्यादा आग्रह करे कि और प्रेमपूर्ण हो तो 10-5 मिनट भी होना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव है उसी में हम सदा हो सकते हैं। जो भी विभाव है और बाहर से लिया गया उसमें हम सदा नहीं हो सकते। उसे उतारना ही पड़ेगा, उस बोझ से हटना ही पड़ेगा। आत्मा शुद्ध है, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो कभी अशुद्ध हो जाती है और फिर हमें शुद्ध करनी पड़ती। अगर आत्मा अशुद्ध हो सके तो फिर हम शुद्ध ना कर पाएंगे, फिर कौन शुद्ध करेगा? हम ही अशुद्ध हो गए, शुद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा। कौन करेगा शुद्ध? जो शुद्ध कर सकता था वो खुद ही अशुद्ध हो गया है। अब तो वो अशुद्ध आत्मा जो भी करेगी वो सभी अशुद्ध होगा। नहीं, आत्मा अशुद्ध हो जाती है और हमें शुद्ध करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। आत्मा शुद्ध है, सिर्फ हम अशुद्ध गुणों को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि एक दिए के चारों तरफ हम काला पर्दा लटका, दिया इससे अंधेरा नहीं हो जाता, दिया अब भी अपनी रोशनी में ही जलता रहता, लेकिन चारों तरफ का काला पर्दा है, चारों तरफ रोशनी को पहुंचने से रोक देता है। और अगर दिया हमारे जैसा पागल हो और धीरे धीरे भूल जाए कि मैं दिया हूं और समझने लगे कि मैं काला पर्दा हूं, तो कठिनाई जो पैदा हो जाएगी वही कठिनाई हमारे साथ है। हमारा स्वयं के निज स्वभाव से तो संबंध टूट जाता है, और शरीर और मन और विचार और वृत्ति और वासना का जो हमारे चारों तरफ जाल है उससे हमारा तादात्म्य हो जाता है। हम कहने लगते हैं ये हूं मैं, ये हूं मैं। वो जो भीतर है वो किसी चीज के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है और कहने लगता है ये हूं मैं। और इतना शुद्ध है वो भीतर का तत्व, इतना निर्मल है कि किसी भी चीज की जब छाया उसमें बनती है तो पूरी बन जाती, और उस छाया को हम पकड़ लेते, कहने लगते हैं ये हूं मैं। शुद्धि के कारण ही ये दुर्घटना भी घटती है। अगर दर्पण होश में आ जाए और आप दर्पण के सामने खड़े हों और दर्पण अपने भीतर झांक कर देखे और पाए कि आपकी तस्वीर बनी और आपको सामने खड़ा देखे और दर्पण कहे कि ये हूं मैं, वही भूल हो जाती। शुद्ध है आत्मा, उसकी शुद्धि के कारण इतनी निर्मल झील की तरह है कि जो भी उसके आसपास आता है वो उसमें दर्पण की तरह झलकता है। जो भी शरीर पास आता है तो दर्पण की तरह झलकता है, तो आत्मा कहती है मैं हूं शरीर। और कितना शरीर बदलता जाता है फिर भी आपको ख्याल नहीं आता कि कितने शरीरों से आप अपना तादात्म्य कर लेते हैं। अगर माँ के पेट में जो पहला अणु बनता है वो निकाल के आपके सामने रख दिया जाए और कहा जाए कि ये थे आप एक दिन, तो आप बिल्कुल इनकार करेंगे कि ये मैं कभी नहीं। अगर आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक रोज 10-5 चित्र लिए जाएं तो एक लंबी सीरीज श्रृंखला चित्रों की हो जाए, और हर चित्र से आपने एक दिन कहा है कि ये हूं मैं। कहां बचपन का चित्र और कहां बुढ़ापे का चित्र, कहां जन्म लेता हुआ बच्चा और कहां कब्र में उतरता ताबूत, इन सबसे आप एक रहे। जो जब दर्पण में आपके झलका है आपने कहा ये हूं मैं, दिस इज मी। यही हूं। कल फिर दर्पण पर दूसरी झलक आई और आपने कहा यही हूं। कभी अपने बचपन के चित्र को उठाकर फिर अपनी जवानी के चित्र को उठाकर देखें, कोई भी तालमेल है उनमें, कोई भी संबंध है। ये आप हैं,
नहीं, एक दिन दावा किया था ये, फिर स्मृति में दावा बैठ गया। अभी भी हाँ, एक दिन में ये था, अब ये हूं। रोज शरीर बदल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्षों में शरीर का कण कण बदल जाता है, एक कण भी नहीं बचता पुराना, लेकिन आइडेंटिटी जारी रहती, तादात्म्य जारी रहता है। हड्डी बदल जाती, मांस बदल जाता, सब खून बदल जाता, सब सेल्स बदल जाते, सब बदल जाता है। 7 साल में 70 साल एक आदमी जीता है तो 10 बार टोटल शरीर बदल चुका होता है, पूरा शरीर 10 बार बदल चुका होता है। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, लेकिन नहीं, वो शुद्ध दर्पण है भीतर। जो भी झलक बनती है, जो भी तस्वीर बनती है, वो कर देती है। यही तादात्म्य टूट जाए, यही नासमझी टूट जाए, ये हम कहना छोड़ दें कि ये हूं मैं, और कहने लगे कि इस सब को जानने वाला हूं मैं, इस सब का साक्षी हूं मैं, विटनेस हूं मैं। मैंने बचपन को भी जाना था, वो मैं नहीं था। मैंने जवानी भी जानी, वो भी मैं नहीं था। मैं बुढ़ापा भी जानूंगा, वो भी मैं नहीं हूँ। मैंने जन्म भी जाना, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं मृत्यु भी जानूंगा, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जिसने ये सब कुछ जाना। ये लंबी सीरीज, ये फिल्मों का लंबा काफिला, ये सब जाना जिसने, वो हूँ मैं। जानने वाला हूँ मैं, जो जाना जाता है वो नहीं हूँ मैं। जो प्रतिफलित होता है, प्रतिबिंबित होता है, वो नहीं हूँ मैं। जिसमें प्रतिबिंबित होता है वो हूँ मैं। तब आत्मा परम शुद्ध, तब वो निर्मल दर्पण, तब वो बिल्कुल निर्दोष चीज, जहाँ कोई लहर अशुद्धि की कभी नहीं होती। जब उपनिषद कहते हैं कि शुद्ध बुद्ध है, वो शुद्ध है पूरा, लेस मात्र भी कोई अशुद्धि कभी आत्मा में प्रवेश नहीं की। तो इस तादात्म्य को तोड़ कर कहते हम भी उतने ही शुद्ध हैं। कोई कभी अशुद्ध हुआ नहीं, हो नहीं सकता है, उपाय नहीं। लेकिन तादात्म्य अशुद्ध कर जाता है। तादात्म्य पापी बना देता है, पुण्यात्मा बना देता है। ध्यान रहे, पुण्यात्मा भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि पुण्य से तादात्म्य है उसका। कोई कहता है कि लोहे की जंजीर हूं मैं, और कोई कहता है सोने की जंजीर हूं मैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बाजार में कीमत अलग होगी सोने और लोहे की, लेकिन तादात्म्य जारी है। कोई कहता है पापी हूं मैं, कोई कहता है पुण्यात्मा हूं मैं। जब तक हम कहते हैं ये हूं मैं, तब तक हम अशुद्ध अपने को नाहक किए चले जाते, होते नहीं और फिर भी किए चले जाते। जिस दिन हम कह देते हैं कि ये भी नहीं हूं मैं, ये भी नहीं हूं, नेति नेति जिस दिन हम कह देते हैं नॉट दिस नॉट दैट, ये भी नहीं वो भी नहीं, मैं तो वो हूं जिसमें सब प्रतिबिंबित होता है। मैं तो वो दर्पण हूं जिसमें सब छायाएं बनती हैं और खो जाती। मैं वो शून्य हूं जिसमें सब झलकता है और विदा हो जाता है। न मालूम कितने जन्म झलके, न मालूम कितने शरीर झलके, न मालूम कितने रूप, न मालूम कितनी आकृतियां, न मालूम कितने अर्जित गुण, न मालूम कितनी योग्यताएं, कितने पद, कितनी उपाधियां। अनंत अनंत यात्रा है, लेकिन झलक नहीं। और झील सदा निर्मल है। झील के किनारे पर से यात्री गुजरते जाते हैं, झील में नए नए प्रतिबिंब बनते जाते हैं, और झील सोचती चली जाती है ये हूं मैं। कभी राह से गुजरता है कोई चोर और झील कहती है चोर हूं मैं, और कभी राह से गुजरता है कोई साधु और झील कहती है साधु हूं मैं, और कभी राह से गुजरता है कोई पुण्यात्मा और झील कहती है पुण्यात्मा हूं मैं, और कभी गुजरता है कोई पापी और झील कहती है पापी हूं मैं। और झील कहे चली जाती है और राह के किनारे से काफिले गुजरते चले जाते, प्रतिबिंबों के कैरावान्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, कारवां प्रतिबिंबों के। और इतनी तेजी से गुजरते हैं वो कि एक प्रतिबिंब मिट नहीं पाता कि दूसरा बन जाता है। बीच में क्षण नहीं मिलता कि हम देख लें उस झील को जिसमें कोई प्रतिबिंब नहीं। ध्यान की प्रक्रिया उस बीच के गैप को देने की, अंतराल, इंटरवल, जब कोई
कहते हैं कि मैं तो झील हूँ, काफिला नहीं। वो जो गुजरता है किनारे से वो नहीं, वो जो चित्र मुझ पे बनते हैं वो नहीं। मैं तो वो हूँ जिस पे सब बनता है और फिर भी अनबना। मैं अनबना छूट जाता हूँ, असृष्ट, अनिर्मित। ये 3 बातें ख्याल में ले लें। बाकी और जो बातें गिनाई हैं वो इनके ही भिन्न भिन्न रूप हैं। Take a few deep breaths all the way to the navel center. Breathe in and breathe out. And slowly reconnect with your body and come back. This is the completion of the ceremony.